So class 4, you know that we have already started chapter 16, the earth and the sky. And I have explained you also, okay? I have explained you also I have explained you what are the three parts of the earth, what are the internal structure. I have explained you. I have explained you what are the crust, what are the mantle, what are the core. Okay. So we have seen that what are the internal structure of the earth, and I have also explained you that the earth consists of three layers: the crust, the mantle, and the core. Okay. The crust is the outermost layer. The mantle just lies below the crust, and the core is the innermost earth from where the lava comes out. Okay. So I can see many of the students are there. Okay. Now I have also explained you the movements of the earth also, right? What are the movements of the earth? The moves around the sun on a fixed path, and this path is called orbit, and it spins on imaginary line called axis. Okay. These also I have explained. And I have also explained you yesterday what is no imaginary line equator. I have stopped here. Okay. Equator is a imaginary line which divides the earth into two equal parts. Okay. And today I am going to explain you from rotation. So pay attention here. What is rotation? Rotation है क्या? The earth completes one rotation around its axis in 24 hours. यानी कि जब अर्थ अपना पूरा एक कंप्लीट चक्कर अपने एक्सिस पे लगाए तो 24 घंटा लेता है. इसी 24 घंटे को एक दिन कहते हैं हम लोग. वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन. ओके. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. अब रोटेशन क्या कॉज करता है? रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. याद रहे, व्हाट डज रोटेशन कॉज? रोटेशन कॉज डे एंड नाइट. व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट्स करता है अपने एक्सिस पे, तो वन हाफ इट फेसेस द सन. ऑब्वियसली अगर तुम एक जगह बॉल लोगे हाथ पे और एक साइड से मान लो टॉर्च डालोगे, टॉर्च को जला के रखो, यानी कि वो मान लो कि वो सन है, तो क्या होगा कि एक साइड में ही अर्थ, बॉल का एक साइड में ही रोशनी मिलेगा, राइट? तो उसी तरह जब अर्थ चमकता है, सॉरी, जब सूरज रहता है एक साइड में और जब अर्थ फेस करता है उसको, तो उसका एक ही हिस्से में रोशनी आता है.
है, द फर्स्ट 12 आवर, बिकॉज 24 इज डिवाइडेड इनटू 2, इट कम 12 12, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। ओके, तो जो पार्ट अर्थ का फेस करता है सन को, वो हिस्सा डे कहलाता है, मगर उसका ठीक पीछे वाला बैक वाला हिस्सा ऑब्वियसली डार्क रहेगा, तो दैट इज नाइट। एंड बिकॉज अर्थ मूव, आज जब ये घूम कर वापस आता है तो पीछे वाला जो डार्क हिस्सा था वो हो जाता, बन जाता है डे, और जो डे वाला हिस्सा था वो पीछे चल जाता है, रोशनी नहीं मिलता, वो हो जाता है डार्क, दैट इज नाइट। ओके, इस तरीका से डे एंड नाइट टेक प्लेस। ओके, so now we have finished page 120. I hope you have understood. Now please come to the next page, that is page 121. So page 121. Okay. So what we have seen here, okay, when the earth rotates, see here day and night के हमें पढ़ रहा हूँ, when the earth rotates, one half of it faces the sun, उसका एक हिस्सा जो मैंने आपको बताया faces the sun, while the other half and other half, who is clicking on it, don't do it. So when the earth rotates, one half of it faces the sun while the other half is away from it, और जो दूसरा हिस्सा है जैसे कि मैंने बताया वो सूरज से दूर रहता है। देखो ये वाला हिस्सा, कैन यू सी, ये वाला पिक्चर देखो, सी हियर, ये पार्ट जो है, दिस पार्ट, दिस इज फेसिंग द सन, दिस इज हैविंग डे। ओके, ये हिस्सा डे है। ओके, ये हिस्सा डे है। ये जो दूसरा हिस्सा है ये वाला हिस्सा नाइट है। ओके, ये हिस्सा नाइट है बिकॉज यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। ओके, दिस इज नाइट, अंडरस्टूड, एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और ये देखो यही है एक्सिस, ये वाला, कैन यू सी, ये जो इमेजिनरी लाइन जो बीच से जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। इसी एक्सिस पे अर्थ घूमता है इन 24 आवर्स, मेकिंग one day and one night. Okay, so the side which is away gets no light, यहाँ पे मैं हूँ, the side which is away gets no light and remains in darkness, so it has night. The side of the earth facing the sun has day. Okay, so I hope you have understood what is rotation. Now let's come to revolution. अब हम लोग देखेंगे what is revolution. जिस तरीका से मैंने आपको बताया कि अर्थ जब अपने एक्सिस, ये रहा एक्सिस, दिस इज वन द एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो इट इज कॉल्ड रोटेशन। ओके, आज जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमेगा, सूरज का पूरा एक चक्कर लगाएगा, वो भी 365 डेज में, वो कहलाएगा रिवोल्यूशन। ओके, सो लेट्स कम हियर टू रिवोल्यूशन। The movement of the earth, the movement of the earth around the sun is called revolution. It takes 365 and quarter days. Point to be noted. हम लोग समझते हैं कि अर्थ एक साल लेता है, यानी सन के आजू बाजू परिक्रमा करता है, जो वो कंप्लीट राउंड लगाता है सन के चारों तरफ, 365 डेज लेता है। और यही हम लोग पढ़ते आए हैं कि 1 year has 365 days, मगर ऐसा नहीं है। It has 365 days and quarter days, 365 and quarter days, quarter माने हाफ का हाफ,
तो एक दिन अगर 24 घंटा का होता है तो हाफ का हाफ यानी 12 का हाफ 6 घंटा, यानी कि 365 डेज 6 घंटा। और यही 6 घंटा जब हर 4 साल में मिलता है तो 24 घंटा बन जाता है, यानी कि 1 एक्स्ट्रा डे। यही वजह है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 365 डेज नहीं 366 डेज रहता है। एक दिन ऐड कर दिया जाता है हर 4 साल के बाद, जिसे कहते हैं लीप ईयर। क्योंकि यही क्वार्टर डेज जो 6 घंटे है जो छोड़ दिया जाता है हर साल, हर 4 साल में एक बार ऐड किया जाता है साल में, ताकि ये काउंटिंग डिसबैलेंस ना हो और जो मौसम है, जो मंथ है, वो सब अपने जगह पर रहे। ओके, सो इट टेक्स 365 days and quarter days for the earth to complete one revolution. Okay, the revolution of the earth causes season. Point to be noted, the revolution of the earth causes season. Point to be noted, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? Rotation causes day and night, right? Rotation causes day and night. और यहाँ revolution causes season. तो अर्थ का दो मूवमेंट होता है। हम लोगों ने वो दो मूवमेंट क्या क्या देखा? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, बल्कि रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन। ओके, रोटेशन टेक 24 आवर्स, जबकि रिवॉल्यूशन कॉजेज 365। रिवॉल्यूशन टेक्स 365 डेज, रोटेशन टेक्स 24 आवर। ओके, नाउ in rotation, the earth moves on its axis, but in revolution, the earth revolves on its orbit. In rotation, the earth does not complete one complete round around the sun, but in revolution, the earth complete one complete round around it, around the sun. Okay, these were the differences also मैंने कहा। अब चलिए चलते हैं सीजन में, और अभी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। Now let's read about season. Okay, now come to season, मौसम। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स। ऑल द सीजन्स लाइक समर, विंटर एंड मॉनसून आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो देखा कि जितने सीजन्स होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से। व्हेन द अर्थ, मैं यहाँ पे हूँ देखो, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व around the sun, at time the northern hemisphere is bent towards the sun, and the other time the southern hemisphere is facing the sun. So during particular times of the year, both the hemisphere may be at an equal distance from the sun. कभी कभी क्या होता है कि जब when the earth revolve, सूरज के आजू बाजू जाता रहता है, जब घूमता है, तो सूरज जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो एकदम सूरज की तरफ बेंड हो जाता है, और साउथ पोल सूरज से एकदम दूर चला जाता है। तो ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द ईयर बोथ द हेमिस्फीयर्स में एट एन इक्वल डिस्टेंस में आ जाते हैं सन के। सो द रीजन फेसिंग द सन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। सो वो रीजन जो होता है, वो जो जगह जो डायरेक्ट सूरज का सनरेज डायरेक्ट वहां पे पड़ता है, तो उस समय वहां समर होता है। और जो ऑपोजिट साइड है, जो सूरज के रोशनी से एकदम दूर रहता है, वहां विंटर होता है। तो देखो अभी भी विंटर चल रहा है, क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि सूरज की रोशनी से दूर है अभी हम लोग। ओके, सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर इन टू अपोजिट। देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो अपोजिट जगह में, हेमिस्फीयर में। व्हेन वन कंट्री हैज समर, जब एक देश में समर होता है, तो अदर कंट्री हैज विंटर एंड वाइस वर्सा। मतलब हम लोग के यहाँ इस बार विंटर हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में समर हो रहा होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस समर में मनाते हैं। ओके, यहाँ पे आज नोइंग इस फैक्ट, Nicholas Copernicus suggested in the year 1543 that the sun was the center of the universe. यानी कि निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 में कह दिया था कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर दिया।
यहाँ पे टिक मार के डेट दे दो कि आज हम लोगों ने खत्म कर दिया। राइट डाउन 11 दिसंबर 2020। ओके, हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर दिया आज। ओके, नाउ आई एम एंडिंग माय क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।